Welcome, friends. So we are going to study the last bit of this chapter, that is chromosomal disorder. इसके पहले हम लोगों ने जीन डिसऑर्डर्स को समझा था. जीन डिसऑर्डर मीन्स क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए सेगमेंट है. क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड some proteins, histone and non-histone proteins. So DNA is made up of a number of sequence of nucleotide, and a particular sequence of nucleotide on a DNA strand is working as functional unit, that is histone, which is responsible for copying the polypeptide chain or peptide chain, we can say. So that segment of DNA is called as gene, and when gene is faulty or it is altered or it is mutated, then the disorder is found in the individual. That disorder is called as gene disorder. In the previous lecture also I told you that gene disorder and chromosomal disorders are together considered genetic disorder here. Okay. So chromosomal disorders ये क्या है? How the chromosome can cause the disorder? So इसके लिए हम लोगों को कुछ टर्म समझना जरूरी है. प्लाइडी, यूप्लाइडी, अनयूप्लाइडी, पॉलीप्लाइडी. So what is ploidy means? So ploidy means the set of chromosome. Single set of chromosome, double set of chromosome, triple set of chromosome. That is ploidy. Means haploidy, diploidy, triploidy, etc. So that term is used to set of chromosome, that is ploidy. Then what is euploidy, what is aneuploidy, what is polyploidy? So euploidy is the number of set of chromosome in an individual, which is constant for that particular species. For example, human being is diploid, and it is having 46 chromosome, and it has homologous pair, means the chromosome 46 number will have diploid set. अब ये सारे ह्यूमन बीइंग में एक जैसा ही नंबर मिलता, देन इट इज कॉल्ड एज यूप्लॉइडी. मीन्स सभी के अंदर जो मिल रहा, दैट इज यूप्लॉइडी. सबके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है, उसके अलावा अगर क्रोमोसोम का नंबर मिल रहा, for example, human being is having 2n is equal to 46. Okay. Instead of this, अगर किसी इंडिविजुअल में, this is common to all, ये सभी ह्यूमन बीइंग के लिए, लेकिन कुछ ह्यूमन बीइंग ऐसे हैं कि जहां पर 46 प्लस 1 या फिर 46 माइनस 1, like that the number of chromosomes are found. यहाँ पर 46 plus 1 is equal to 47 chromosomes are there. यहाँ पर 45 chromosomes are there. Then this is not equal to 2n. So this is 2n plus 1. And this is 2n minus 1. Okay. तो यहाँ पर क्या हो गया? एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा मिल गया. यहां पर क्या हो गया? जितने क्रोमोसोम चाहिए थे उससे एक कम मिल गया. देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अनयूप्लॉइडी. मीन्स इट इज नॉट द रेगुलर नंबर ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म और अ स्पेसीज. किसी स्पेसीज का, डॉग का जो नंबर है सभी डॉग में एक जैसा मिलना चाहिए. काउज में जो नंबर है वो एक जैसा है, लेकिन कहीं पर ऐसा हो सकता, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज यूप्लॉइडी. देन व्हाट इज पॉलीप्लॉइडी मीन्स? So polyploidy is the condition where mitotic division होते समय S phase में number of chromosome become double, that is DNA content become double, but the number of chromosome is same. And during metaphase, the chromosome align to the metaphasic equator, that is equatorial plate, and thereafter they splice, and after that the DNA is separated from each other.
which was synthesized in S phase. Now it is separated. So क्रोमोसोम का नंबर बदल गया. क्रोमोसोम कितने थे पहले? जो भी थे, फॉर एग्जाम्पल 20 थे, तो इसके अंदर 40 क्रोमोसोम का डीएनए यहां पर आ गया, बिकॉज एस फेज ने इसको सिंथेसाइज कर लिया. ड्यूरिंग मेटाफेज वो अलाइन हो गए एट द इक्वेटोरियल प्लेट, एंड बाद में सेंट्रोमियर स्प्लिट होके जो डीएनए डबल था वो सेपरेट होके उसका एक एक क्रोमोसोम बन गया. नाउ द क्रोमोसोम बिकम डबल, मीन्स 20 थे तो अब 40 हो गए. अब इसके बाद ये कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होनी चाहिए. देन 2 cells आर फॉर्म, 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म. लेकिन कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, मतलब सिंगल साइटोप्लाज्म में डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज देयर. ऐसा अगर होते गया, सो दैट इज कॉल्ड एज पॉलीप्लॉइडी, एंड इट इज फाउंड इन केस ऑफ प्लांट. यूजुअली एनिमल में ये केस नहीं होता. ठीक है. सो प्लॉइडी मीन्स नंबर सेट ऑफ क्रोमोसोम. कितना? हैप्लॉइड मीन्स सिंगल सेट, डिप्लॉइड मीन्स डबल सेट, ट्रिप्लॉइड मीन्स ट्रिपल सेट, तो उसको बोलते प्लॉइडी. अब जो रेगुलर नंबर है किसी स्पेसिस का, दैट इज कॉल्ड एज यूप्लॉइड. रेगुलर के अलावा कुछ इंडिविजुअल्स में अगर ऐसा फॉल्ट आ गया ड्यू टू फॉल्टी meiotic division, then the number of chromosome will be changed. That altered or changed number of chromosome is called as aneuploidy. Polyploidy means कैरियोकाइनेसिस हो गया लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा हो गया वहां पर. Then this condition is called as polyploidy. ठीक है. तो यहां पर हमें अनयूप्लॉइडी पढ़नी है अभी. दिस कंडीशन अनयूप्लॉइड एंड अनयूप्लॉइडी रिजल्ट इनटू क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. तो फिर उसकी वजह से क्रोमोसोम के वजह से जो डिसऑर्डर्स मिल रहे, ये अनयूप्लॉइडी के कारण है, उसके पीछे ये कॉज है. तो यहां पर मैंने लिख दिया कि हमें क्या क्या पढ़ना है. सो व्हाट इज दैट? डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये हमारे सिलेबस के अंदर है. लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सिंड्रोम है. एडवर्ड सिंड्रोम है, क्राइडो-चार्ट सिंड्रोम है, ऐसे अलग अलग सिंड्रोम्स है. ये एग्जाम्पल आपको मैंने इसलिए दिया कि ऐसे मतलब इतने ही हमें पढ़ने, मतलब इतने ही होते हैं ऐसा नहीं. इसके अलावा भी बहुत सारे एबरेशंस देखने को मिलते हैं. उसमें कि कुछ यहाँ पर हम लोग अभी लिखी हुई है. जस्ट वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दैट. एडवर्ड सिंड्रोम, क्राइडो-चार्ट सिंड्रोम, लाइक दैट. सो डाउन सिंड्रोम क्या है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम क्या है, टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसको पढ़ना है. ठीक है. अब देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट डाउन सिंड्रोम. So what is this Down syndrome means? ये क्या है, ये केस कैसी है? तो जॉन लैंगडन डाउन नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने ये ढूंढ के निकाला और इसलिए उनका रिस्पेक्ट करने के लिए इस सिंड्रोम का नाम डाउन सिंड्रोम ऐसा रख दिया है. अब देखिए, इट इज कॉज ड्यू टू ट्राइसोमी. कहां पर? ऑफ 21 ऑटोसोम. इट इज 21 ऑटोसोमल ट्राइसोमी. ये कंडीशन है 21 ट्राइसोमी. इसको 21 ट्राइसोमी इज इक्वल टू डाउन सिंड्रोम ऐसा नाम देंगे हम लोग, 21 ट्राइसोमी. ओके, व्हाट इज दैट? सी हाउ इट इज रिजल्टिंग. सो ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है क्रोमोसोम की वजह से, नॉट ड्यू टू सेक्स क्रोमोसोम, बिकॉज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर ऑल्सो सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड ऑटोसोमल डिसऑर्डर. याद रखना आपको, क्रोमोसोमल एंड ऑटोसोमल एंड क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. इट मीन्स ऑटोसोम की वजह से अगर हुआ तो ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, और सेक्स क्रोमोसोम की वजह से अगर हुआ देन इट इज एक्स क्रोमोसोमल एबरेशन, ऐसा हम नाम देंगे इसको. ओके, नाउ ट्राइसोमी एट द 21st लेवल. ठीक, समझने की कोशिश करो. एक अगर आपको समझ में आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली समझ में आएगा. सो दिस इज मेल, दिस इज फीमेल पेरेंट, मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट. तो ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इनके पास 46 क्रोमोसोम थे इन
gamete forming cell, diploid egg. This diploid cell will undergo meiotic division to form, मेल है तो यहां पर 4 sperm का फॉर्मेशन होगा, but every sperm will have only 23 and 23 chromosomes. हियर एक का फॉर्मेशन होगा, वो भी मियोटिक डिवीजन की वजह से होगा. यहां पर 4 एग नहीं, एक ही ओवम फॉर्म हो जाता है, उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स आर देयर. रिमेनिंग आर पोलर बॉडीज. बाकी की जो 3 है वो डिजेनरेटिव पोलर बॉडीज फॉर्म हो जाते, पोलर बॉडीज. ठीक है. सो दीज आर डिजेनरेटिंग, देयरफॉर दीज आर नॉट एग्स. ओनली एक ओवा हमें मिलता है व्हेन फीमेल इज अंडरगोइंग मियोटिक डिवीजन इन जर्मिनल एपिथेलियम. और यहां पर मेल के अंदर जो जर्मिनल एपिथेलियम है, इट विल अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म 4 cells which are called as sperm. मीन्स एक स्पर्म फॉर्म नहीं होगा, यहां पर एक ही एक फॉर्म होगा. ये रेगुलर केस है. अगर वो रेगुलर केस नहीं है तो फिर व्हाट विल हैपन, तो इसको हम लोग कंसिडर करते हैं. एक बात मैं आपको समझा देता हूं कि दोनों केसेस में ये पॉसिबिलिटी है. फॉल्टी मियोटिक डिवीजन अगर हो गया तो व्हाट विल बी द प्रॉब्लम. सी, अब 46 क्रोमोसोम मतलब देखिए, मैं यहां पर उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऐसे कि दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. ये होमोलॉगस पेयरिंग यहां पर होगा, और होमोलॉगस पेयरिंग होगा तो लास्ट में इसमें आएगा एक्स एंड वाई और बाकी के सारे ऑटोसोम्स. ठीक है. अब एक जगह पर जो हो रहा है वो दूसरी जगह पर भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. अब इसका फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर लाइक दैट. अगर हम लोग 23rd के पास जाएंगे, 23rd, तो ड्यूरिंग मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ओनली, या फिर हाँ ओनली फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, तो ये वाला जो क्रोमोसोम है इधर, ये वाला क्रोमोसोम इधर शिफ्ट होगा, इसको खींचा जाएगा. फिर एक सेल में ये 2 सेल फॉर्म होगी, एक इधर गया एक इधर गया, सेल दोनों में से एक क्रोमोसोम इधर इधर. लेकिन 23rd लेवल पर क्या हुआ, ये दोनों सेपरेट नहीं हो पाए, टर्मिनलाइजेशन नहीं हुआ. बाकी सारे सेपरेट होके एक 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 यहां पर आ गया. ठीक है. यहां पर एक 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 आ गया, लेकिन 23rd में क्या हुआ, सेपरेट नहीं हुआ. इधर वो इधर चला गया या फिर इधर चला गया, इसलिए हम लोग ऐसा मानेंगे कि यहां पर चला गया. तो 23rd लेवल पर हमें यहां पर एक भी क्रोमोसोम नहीं मिलेगा, बिकॉज ये दोनों के दोनों इधर शिफ्ट हो गए. तो इधर क्या हो गया, 9 क्रोमोसोम, और यहां पर क्या है, डबल आ गया. ठीक है. इधर एग में 1 2 3 4 5 6 ऐसे 23 क्रोमोसोम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 ऐसा 23rd तक. तो यहां पर 21 लेवल पर एक क्रोमोसोम है. अगर वो रेगुलर उसका मियोटिक डिवीजन हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो वो भी फॉल्टी. ठीक है. ऐसा मानेंगे कि दिस इज रेगुलर, मीन्स इसको 23 क्रोमोसोम मिल गए. अब ये दोनों का फ्यूजन हुआ, तो फ्यूजन में यहां पर दिख रहा हूं दोनों का. ठीक है. ये दोनों का फ्यूजन हुआ तो इधर से पहला, इधर से पहला, हर जगह पर एक इधर से एक इधर से एक इधर से एक इधर से. 21 के पास यहां पर क्या आ गया, 2 आ गया, और इधर से 1 आ गया, मतलब क्या हो गया, 3. Therefore it is called as 21 ट्राइसोमी. बाकी सभी जगह पर उसको डिप्लॉयड से दिखाई देगा दिस इज जाइगोट. जाइगोट में ये फॉर्म हो गया, लेकिन 23rd लेवल पर क्या हो गया, वहां पर 3 क्रोमोसोम आ गए. इट इज ड्यू टू फॉल्टी मियोटिक डिवीजन. ठीक है. अभी आप लोगों को मियोटिक डिवीजन पढ़ाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी यू आर नोइंग कि पहली मियोटिक डिवीजन होगी, दूसरी मियोटिक डिवीजन भी सेम होगी. इसमें का नंबर ऐसे मिलेगा हमें, पहली मियोटिक, देन दूसरी मियोटिक, फिर फ्यूजन होगा. हमने
एक स्टेप यहाँ पर गायब कर दे। इट डजंट मीन कि वो एक ही बार होता है मेयोटिक डिवीजन, नो। एक बार हो गया, दूसरी बार भी होगा, 4 स्पर्म मिलेंगे, यहाँ पर एक एग मिलेगा, डबल मेयोटिक डिवीजन होगा फर्स्ट एंड सेकेंड, लेकिन पोलर बॉडी मिलती है यहाँ पर और एक ओवा मिलता। तो ओवा एंड स्पर्म ये इनका फ्यूजन हो गया। तो व्हाट इज द कंडीशन? 21 ट्राइसोमी। 21 ट्राइसोमी इज इक्वल टू डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम में जो बच्चा है वो मेल हो सकता या फीमेल भी हो सकता, क्योंकि ये ऑटोसोम है। ऑटोसोम के चेंजेस मेल में आ गए, फीमेल में आ गए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वाई कंटेनिंग स्पर्म, ये तो एक्स ही होता है, सो एक्स एंड वाई, तो यहां पर मेल बेबी हो गया। अगर दिस इज एक्स कंटेनिंग स्पर्म देन इट इज फीमेल बेबी, मतलब इट इज इक्वली फाउंड इन मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन, चाइल्ड। मेल एंड फीमेल चाइल्ड में ये इक्वली प्रेजेंट होगा बिकॉज इट इज ऑटोसोमल डिसऑर्डर। फिर इसके कैरेक्टर क्या है? तो मून फेस है, क्लब फिंगर है, बड़े बड़े फिंगर, यहां पर हाथ के ऊपर बहुत बड़ी इसकी निशानी है, ये हमारा हाथ है, ये फिंगर्स, ठीक है। अब ये डायग्राम है, मैंने हाथ से निकाली हुई। यहां पर आपके हाथों पर ऐसी कुछ निशानियां आपको मिलती है, ठीक है। अगर ये डाउन सिंड्रोम है तो यहां पर ये जो लाइन है ये नहीं होगी, ये सिंपल ऐसा एक बहुत ही बड़ा लाइन यहां पर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज सिमियन क्रीज। ये नाम है उसका, सिमियन क्रीज। तो ये उसके हाथों में मिल रहा, एक लाइन, दूसरी लाइन, थर्ड लाइन, लेकिन यहां पर क्या हो गया, एक कंप्लीट लाइन, ये लाइन नहीं मिलती वहां पर, देन इट इज कॉल्ड एज सिमियन क्रीज। मून फेस है उसका, मेंटली रिटार्डेड है, thereafter टंग इज प्रोट्रूडिंग, सलाइवेटिंग, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज उसको हो सकता। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर देयर, यू कैन राइट वन बाय वन, यहां पर उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाउ इट इज हैपनिंग यहां पर आपको ये समझाने के लिए ये डाउन सिंड्रोम दे दिया। thereafter एक हमने पढ़ लिया डाउन सिंड्रोम, अगर वो 18 क्रोमोसोम के बारे में है तो फिर एडवर्ड सिंड्रोम। 13 क्रोमोसोम के बारे में है देन इट इज कॉल्ड एज क्राइडो-चैट सिंड्रोम। ओके, वी डोंट हैव एनी रिलेशन विद दिस, बट डाउन सिंड्रोम हमें डिटेल में पढ़ना है, इसका कैरेक्टर आप लोग पढ़ लेंगे। नाउ 6 क्रोमोसोम की वजह से जो सिंड्रोम हमें मिल रहे हैं वो 2 टाइप के हैं। अब आप सोचेंगे कि दोनों जगह पर अगर ट्राइसोमी मिल गया तो टेट्रासोमी, यस इट इज पॉसिबल, लेकिन सच केसेस आर वेरी रेयर। फॉल्टी मेयोटिक डिवीजन कब होता? व्हेन द एज ऑफ द मदर एंड फादर इज वेरी हाई। जनरली मदर का एज अगर ज्यादा हो गया 35-40, उसके बियॉन्ड अगर वो रिप्रोड्यूस कर रहे, देन द चांसेस आर देयर ऑफ सच फॉल्टी मेयोटिक डिवीजन। सो लेट रिप्रोडक्शन की फेज में जाना इज there are chances of such syndromes. Okay, thereafter Klinefelter syndrome. अब ये वाला एक्स और सेक्स रिलेटेड क्रोमोसोम के बारे में ये है, therefore ऑटोसोम नॉर्मल है और एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम इसके बारे में। अब जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा कि डाउन सिंड्रोम में सेपरेशन नहीं हुआ, तो यहां पर क्या हम दिखाएंगे, ये दोनों के दोनों सेपरेट नहीं हुए। ड्यूरिंग पोलर बॉडी फॉर्मेशन या एग फॉर्मेशन इसका डिवीजन हुआ, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, देन सेकंड मेयोटिक डिवीजन। ये पोलर बॉडीज है और ये वाला एग है, तो एक के अंदर क्या हो गया, एक एक ऑटोसोम आ गया, लेकिन दोनों के दोनों सेक्स क्रोमोसोम आ गए। एक केस, या इसमें एक एक ऑटोसोम आ गया और ये दोनों के दोनों सेक्स क्रोमोसोम आ गए।
यहां पर अगर नॉर्मल है, यहां पर एबनॉर्मल, यहां पर अगर एबनॉर्मल है तो यहां पर हम लोग लेंगे नॉर्मल स्पर्म। सो इस केस में ये वाले केस और ये वाले केस, अदरवाइज वी कैन टेक नॉर्मल एग एंड एबनॉर्मल स्पर्म। स्पर्म एबनॉर्मल क्यों है? बिकॉज यहां पर बाकी सभी ऑटोसोम सिंगल आ गए, लेकिन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम दोनों सेपरेट नहीं हुए, दोनों के दोनों एक ही स्पर्म में प्रेजेंट है। अब चांसेस आर देयर कि ये दोनों का फ्यूजन होकर अगर ज़ायगोट बन गया तो व्हाट विल बी द सेक्स क्रोमोसोम हियर? एक्स एक्स वाई, एक्स एक्स वाई मीन्स एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया। उसकी वजह से जो डिसऑर्डर आ गया दैट इज कॉल्ड एज क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में क्या है? इट इज XXY सिंड्रोम। बाकी ऑटोसोम का कोई प्रॉब्लम नहीं, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स आर देयर, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया? जैसे कि डाउन सिंड्रोम में क्या हो गया था? 46+1। ओके, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइसोमी। ट्राइसोमी क्यों? एक जगह पर 3 दिखेंगे। यहां पर क्या हो गया? ट्राइसोमी है लेकिन सेक्स क्रोमोसोम के बारे में है, तो यहां पर डबल डबल एक्स क्रोमोसोम मिला, तो फेमिनाइन कैरेक्टर मेल में दिखेंगे बिकॉज दिस इज मेल, ये मेल है, क्लिनफिल्टर इज मेल। क्यों? वाई क्रोमोसोम इज देयर, लेकिन एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, तो ये मेल है लेकिन फेमिनाइन मेल है। फेमिनाइन मेल मतलब गायनेकोमैस्टिया, गायनेकोमैस्टिया। It means the males are showing feminine character. Development of breast will be there. Testis का development low हो जाएगा. Height बहुत बड़ी. Mentally they are normal, but physically they are abnormal. Height बहुत ही tall है. Breast का development हो गया और testis का development under development हो गया. Therefore they are not fertile. Okay. So this is called as Klinefelter syndrome. अब दूसरी केस कि जैसा ये दोनों के दोनों कहां पर आ गए? एक्स एंड वाई एक स्पर्म में आ गए। सो फिर रिमेनिंग स्पर्म में क्या है? सारे के सारे ऑटोसोम से एक भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। अगर ये पॉसिबिलिटी है और इस एग का फ्यूजन इस स्पर्म के साथ हुआ तो यहां पर ऑटोसोम के सारे डबल सेट मिलेंगे लेकिन एक्स एक ही मिलेगा। इट मीन्स इट इज X0 सिंड्रोम। X0 सिंड्रोम इज कॉल्ड एज टर्नर सिंड्रोम। ये टर्नर सिंड्रोम X0। सभी जगह पर ऑटोसोम का नंबर सेम लेकिन एक्स क्रोमोसोम के साथ एक्स क्रोमोसोम चाहिए या फिर वाई क्रोमोसोम चाहिए, मीन्स इसके डबल कॉपी चाहिए। तो यहां पर क्या हो गया? ये एक एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम एब्सेंट है। अब यहां पर एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट ओनली, एक्स क्रोमोसोम, देयरफॉर दिस इज फीमेल, दिस इज मेल। डाउन सिंड्रोम में मेल एंड फीमेल कैन बी देयर। ये डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा कि दिस कैन नेवर बी मेल, दिस कैन नेवर बी फीमेल, इट विल बी मेल बट फेमिनाइन मेल। दिस कैन बी डाउन सिंड्रोम में ऑटोसोम का है वो डिसऑर्डर, देयरफॉर एक्स एंड वाई होगा तो वो मेल या फीमेल में भी होगा। सो दिस इज स्टराइल फीमेल। स्टराइल फीमेल मतलब सी कैन नॉट रिप्रोड्यूस, फीमेल तो है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं हो रही। ठीक है, यहां पर मेंटल रिटार्डेशन है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं। दिस इज स्टेराइल, दिस इज गायनेकोमैस्टिक। अब सम टाइम इट इज फाउंड दैट कि किसी इंसान में ऑटोसोम तो प्रॉपर है लेकिन XXX आ गया, ट्रिपल एक्स। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज सुपर फीमेल। अब सुपर फीमेल है, इट डजंट मीन कि वो कोई हार्मफुल है, दैट विल बी नॉर्मल। उसमें की एक कॉपी स्टरलाइज करके रखी जाती। सो दिस कंडीशन कैन बी पॉसिबल
लेकिन वो ज्यादा की कंडीशंस हम लोग नहीं ले रहे, बस इतना ही ले रहे. इफ यू हैव एनी डाउट you can comment in the comment box what you don't understand, what you didn't understand, and if everything is okay, then solve the problem related to this. Next portion will be problems on this all content. Okay, see you then.